A very good morning to all the students. Welcome to my channel, My Passion for Accountancy. I am here with one more chapter of class 11th, Errors and their rectification. So let's start this chapter. First of all, let us understand the meaning of all types of errors. The first error is error of omission. A transaction is being left recorded completely or partially is termed as error of omission. It is divided in two parts, error of complete omission. So what is error of complete omission? When a transaction is recorded in journal but not posted to ledger is known as error of complete omission. Such errors do not affect trial balance. Let's talk about the error of partial omission. When a transaction is being recorded in journal but not posted one of any of these two accounts is known as error of partial omission. Such errors always affect the trial balance. Let us try to understand this with the help of these two examples. Let's have goods sold to Rajesh recorded in journal but not posted to ledger. Now you can see this transaction is being recorded in journal but not posted to ledger accounts. So such error is an example of error of complete omission. Now let's have another example, goods sold to Rajesh but not posted to Rajesh account. Now you can see journal entry is made in journal but Rajesh, it is not posted to Rajesh account. It is an example of partial omission. Now let's have error of commission. Errors of wrong recording, wrong posting, wrong casting, wrong carry forward. Such errors are known as error of commission. Means let's have next error of principal. When a transaction is recorded against the accounting principle, such errors do not affect trial balance, and such errors are known as error of principal. For example, revenue nature expenses recorded as capital nature expenses, and revenue nature incomes is being recorded as revenue nature capital nature income. So these errors are recording in the books against the accounting principles. Now, fourth error is compensating errors. The effect, such errors are those errors, the effect of one error is nullified with the effect of another error. Such errors are known as error of compensation or compensating errors. For example, purchase book undercast, and same time sales return book is overcast by the same amount. So you can see the effect of these two errors will nullify each other. So such error are known as error of compensation. Now, from the numerical point of view, errors are classified in two parts, one-sided error and two-sided errors. So, from the understanding the concept, I have taken two-sided error first. So, let's try to understand this. There are certain examples I have taken. Now, you see salary paid to Ramesh, rupees 5,000 debited to Ramesh personal account. So, here we have to write the entry, correct entry, wrong entry, and rectifying entry. Only you will have to write in the fair part rectifying entry, but this you can do as a working notes to better understand this. So first of all, let's start the salary paid to Ramesh. What is the correct entry? When salary paid to Ramesh, the correct entry will be salary account debit to cash account. Now, what is the wrong entry? Ramesh personal account was debited, so Ramesh account debited to cash account. Now, from these two entries, we'll have to pass rectifying entry. Salary was to be debited and Ramesh was wrongly debited. So, salary was to be debited. So, let's debit salary. Salary account debit. This Ramesh account is wrongly debited. So, जो wrongly debit हुआ है उसे क्या करेंगे, उसे हम credit कर देंगे, तो ये हो जाएगा to Ramesh account. And amount we can write here 5,000. Right? Now, let's have another example. Goods taken by the proprietor for personal use, debited miscellaneous expense account. So whenever goods taken by the proprietor for personal use, what will be the journal entry? First pass. So journal entry will be drawings account debit to cash account, not cash, because goods is taken, so we write here purchases. Drawings to purchases, and wrongly miscellaneous expense account was debited. So miscellaneous expense account debit to
purchases. Now you can see drawings account was to be debited और ये गलती से डेबिट हुआ है, तो जो डेबिट होना है उसे हमने डेबिट कर दिया. Drawings account will be debited और जो गलती से डेबिट हुआ है miscellaneous expense उसे क्या कर देंगे, उसको हम कर देंगे क्रेडिट. Miscellaneous expense account. Let's move to next. Cash paid to Ajay on behalf of Vijay wrongly debited Ajay account. तो करेक्ट एंट्री क्या होगी, कैश पेड टू अजय ऑन बिहाफ ऑफ विजय. सो विजय डेबिट विजय's अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट और गलती से डेबिट क्या हो गया है, अजय का अकाउंट, अजय's अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास हो जाएगी, विजय डेबिट होना है तो जो डेबिट होना है उसको मैं डेबिट कर दूंगा, विजय's अकाउंट डेबिटेड, और जो गलती से डेबिट हो गया अजय उसको कर देंगे क्रेडिट to Ajay's account. So rectifying entry will be Vijay to Vijay's account debit to Ajay's account. Let's move to next. Cash received from Mohan wrongly credited Sohan account. Now you can see cash received from Mohan. So what is general entry? What is the correct entry? The correct entry pass होगी cash account debit to Mohan to Mohan's account और wrong entry pass हुई है cash account debit to Sohan's account. Now you can see Mohan account क्रेडिट होना है और गलती से क्रेडिट क्या हुआ है सोहन, तो जो क्रेडिट होना है उसे तो मैंने क्रेडिट कर दिया, ठीक है, और जो गलती से क्रेडिट हो गया है सोहन उसे क्या कर देंगे, उसको हम डेबिट कर देंगे. दैट वे वी विल पास रेक्टिफाइंग एंट्री. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. I have some taken another examples also. So let's move to next example. Okay, now look at this example. Furniture purchased wrongly debited to purchase account. So first of all, what will be the correct entry? Furniture purchase, correct entry will pass furniture account debit to cash account. और गलती से डेबिट क्या हो गया है, परचेज अकाउंट, तो एंट्री के पास होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नाउ यू कैन सी फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना है, परचेज अकाउंट गलती से डेबिट हुआ है, तो जो डेबिट होना है उसे हमने डेबिट कर दिया. बहुत सिंपल सा रूल है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और तो जो गलती से डेबिट हो गया उसे क्या कर देंगे, उसको हम कर देंगे क्रेडिट टू परचेजेस अकाउंट. चलिए लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट एग्जांपल. कैश पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग रॉन्गली डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट. तो व्हाट इज द करेक्ट एंट्री, repairs account debit to cash account. What is wrong entry, building account debit cash account. Now from this what is the rectifying entry, repair debit होना है तो उसे हमने डेबिट कर दिया, repairs account debit, और बिल्डिंग गलती से डेबिट हुआ है तो उसे क्या कर देंगे, उसे कर देंगे हम क्रेडिट बिल्डिंग अकाउंट. चलिए लेट्स मूव नेक्स्ट. कैश पेड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ न्यू कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग डेबिटेड टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट. तो जब वाइट वॉशिंग ऑफ न्यू बिल्डिंग हो रहा है तो वो बिल्डिंग अकाउंट में चार्ज होगा, तो एंट्री उसकी करेक्ट एंट्री पास होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और गलती से इसको चार्ज कर दिया है मिसलेनियस एक्सपेंस में, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नाउ यू सी द कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर. ये बिल्डिंग डेबिट होना है, जो डेबिट होना है उसे मैंने डेबिट कर दिया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, and miscellaneous expenses wrongly debited as it will be credited to miscellaneous expenses account. Next, paid rupees 3,000 for installation of new machinery wrongly debited to installation charges. So whenever new machinery is installed, so all expense will go to that machinery account. तो correct entry इसकी हो जाएगी machinery account debit to cash account और गलती से इसको किया गया डेबिट इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट.
नाउ यू कैन अंडरस्टैंड मशीनरी डेबिट होना है, जो डेबिट होना है उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम डेबिट कर देंगे मशीनरी अकाउंट को। और इंस्टॉलेशन चार्जेस गलती से डेबिट हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्रेडिट इंस्टॉलेशन charges account. To better understand, we have more example of the two-sided errors. Wages paid for construction of office debited to wages account. So whenever some expense is made for the office construction, so that will be charged to office building. जो correct entry पास होगी वो होगी office building account debit, या only you can write building office building account debit to cash account. बट गलती से wages को डेबिट कर दिया गया है तो wages account debit to कैश अकाउंट। सो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास हो जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। लेट्स हैव सम मोर एग्जांपल। मशीनरी परचेज फॉर ₹50,000 was passed through purchase book. So मशीनरी परचेज है तो व्हाट इज द करेक्ट एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और व्हाट इज रॉन्ग एंट्री, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी डेबिट होना है, परचेज गलती से डेबिट है, करेक्शन क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो लेट्स राइट करेक्ट एंट्री, rectifying entry, sorry, machinery account debit to purchases account. Next, old furniture sold for ₹5,000 passed through sales book. So what is the correct entry when furniture is sold? Correct entry will be cash account debit to furniture account. और इसकी जो wrong entry वो पास हुई है cash account debit to sales account. फर्नीचर क्रेडिट होना है करेक्टली और गलती से क्रेडिट हुआ है सेल्स, तो जो गलती से क्रेडिट हुआ है उसे डेबिट कर देंगे और ये क्रेडिट होना है तो इसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो रेक्टिफाइंग एंट्री पास होगी, पहले जो फर्नीचर क्रेडिट होना है उसे मैंने क्रेडिट कर दिया और जो गलती से डेबिट हुआ है सेल्स उसे क्या कर दिया, उसको मैंने डेबिट कर दिया, सेल्स अकाउंट डेबिट, राइट। लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल। ₹2,000 पेड फॉर ऑफिस प्रिंटर वाज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। सो ऑफिस प्रिंटर एक रेपल नेचर एक्सपेंस है तो डेबिट एंट्री जो इसकी करेक्ट एंट्री पास होगी, ऑफिस प्रिंटर या ओनली प्रिंटर यू कैन राइट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और जो गलती से गलती हुआ है वो हुआ है ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो व्हाट इज द रेक्टिफाइंग एंट्री फ्रॉम दिस, ये डेबिट होना है फर्नीचर और सॉरी प्रिंटर तो इसको हम डेबिट कर देंगे, ऑफिस फर्नीचर या ओनली फर्नीचर, प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू, और जो गलती से डेबिट हुआ है ऑफिस एक्सपेंस उसे हम क्या कर देंगे, उसे हम कर देंगे क्रेडिट। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज्ड wrongly charged to कार्टेज अकाउंट। सो करेक्ट एंट्री क्या होगी, जो फर्नीचर परचेज होगा करेक्ट एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और गलती से रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास हो जाएगी बच्चों, फर्नीचर डेबिट है होना है तो डेबिट कर देंगे और कार्टेज गलती से डेबिट हुआ है उसे कर देंगे हम क्रेडिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कार्टेज अकाउंट। Now let's have next. An amount of ₹4,000 due from Mohan had been written off as bad debts unexpectedly recovered. एक अमाउंट है जो बैड डेट्स की रिटर्न बैड डेट्स हो चुका है बट वो अनएक्सपेक्टेडली रिकवर हो गया है। तो जब भी बैड डेट्स रिकवर होते हैं तो उसकी करेक्ट एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। और इसकी जो रॉन्ग एंट्री हुई है तो पास की गई है कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, मतलब उसके पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है।
तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास होगी, ये डेबिट, ये होना है क्रेडिट और ये गलती से क्रेडिट हुआ है, तो जो गलती से क्रेडिट है उसे डेबिट कर लेंगे और ये हो जाएगा क्रेडिट। तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री पास हो जाएगी मोहन्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट recovered account. Okay, let's have one more entry. Cash received from agent of rupees 1000 who had processed our sale of old furniture wrongly posted to his personal account. इसका मतलब है कि हमने किसी एजेंट को अपनी कुछ ओल्ड फर्नीचर सेल करने के लिए बोला हुआ है, तो उसने उस फर्नीचर को सेल किया है, तो उसकी करेक्ट एंट्री क्या पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, और जो इसकी रॉन्ग एंट्री पास हुई है तो पास हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू एजेंट्स पर्सनल अकाउंट, राइट। सो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास होगी, फर्नीचर क्रेडिट होना है और ये गलती से क्रेडिट किया हुआ है, तो इस जो गलती से क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा और जो सही क्रेडिट होना है उसे क्रेडिट करेंगे, तो इसकी एंट्री पास हो जाएगी एजेंट्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। To furniture account. These are some examples of double-sided errors. I hope you understand all this. Now let's move to the another part of this chapter, that is, but before that, some errors also I will have to explain. That now you can see this is the another type of error of double-sided, right, when more than two accounts are involved in correction. So now you understand this. What is the meaning of this? Goods sold to Mahesh, rupees 600 entered through purchase book. So what is the correct entry when goods sold to Mahesh? So correct entry will be Mahesh account debit to sales, right? और इसको एंटर किया है परचेज बुक के थ्रू, यानी परचेज बुक तो क्रेडिट हो नहीं सकती, परचेज बुक तो नेचुरली डेबिट है। इसको जो रिकॉर्ड किया गया है उसको रिकॉर्ड किया गया है परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश, राइट। महेश डेबिट होना है तो महेश को तो हम कर देंगे डेबिट, महेश डेबिट, और सेल्स होना है क्रेडिट, इसे कर देंगे क्रेडिट, और परचेज जो गलती से डेबिट हुआ है उसे भी कैसे क्या करेंगे, उसको भी हम कर देंगे क्रेडिट। तो व्हाट इज द रेक्टिफाइंग एंट्री, महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट एंट्री, गुड्स परचेज फ्रॉम कपिल entered through sales book. So what is the correct entry when goods purchased? The correct entry will be purchases account debit to Kapil 500 and 500, and this is recorded through sales. सेल्स बुक तो डेबिट हो नहीं सकती, सेल्स बुक नेचुरली क्रेडिट है, तो इसको रिकॉर्ड कैसे किया गया होगा, इसको रिकॉर्ड किया होगा कपिल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नाउ लेट्स पास द रेक्टिफाइंग एंट्री ऑफ दिस। सो परचेज, पहले आप क्या है जो करेक्ट एंट्री है उसको आप एज इट इज लिख दो, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज डेबिट होना है उसको डेबिट कर दिया, कपिल को क्रेडिट होना है क्रेडिट कर दिया, और जो सेल्स जो गलती से क्रेडिट हुआ है यानी गलती से उसे क्या कर देंगे, उसको हम डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या पास रहेगी, परचेज अकाउंट डेबिट 500, सेल्स अकाउंट डेबिट 500, और कपिल का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट कितने से, 1000 से, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ एग्जांपल्स। डिस्काउंट अलाउ टू सनी रुपीज 200 एंटर्ड थ्रू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सो डिस्काउंट अलाउ जब होगी तो एंट्री के पास होगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सनीज अकाउंट, और इसको एंटर किया गया डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के थ्रू, तो इसकी एंट्री क्या होगी, वो एंट्री की गई होगी कुछ इस तरह से, सनीज अकाउंट डेबिट
टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होना है, हमने गलती से डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दिया है, तो जो डेबिट होना है पहले उसको डेबिट कर देंगे, यानी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को क्या कर देंगे हम, डेबिट। और डिस्काउंट रिसीव जो गलती से क्रेडिट हुआ है उसको भी हम डेबिट कर लेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू सनीज अकाउंट। और अमाउंट आ जाएगा इसमें 200 और यहाँ आ जाएगा 400। I know these entry are little tricky, but okay, no problem. You can understand because all these types of all three I have written, all are same. Now let's understand more of like this. Goods return to supplier. So जब goods return होगा supplier को तो entry पास होगी supplier debit to जो goods return हम करते हैं वो होता है return, वो होता है purchase return। तो entry क्या पास होगी supplier to purchase return, but इसको enter किया गया है रिटर्न इनवर्ड, यानी इसको एंटर किया गया सेल्स बुक के, तो सेल्स रिटर्न बुक के। सो एंट्री क्या पास की है, रॉन्ग एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। अब सप्लाई जो करेक्ट रेक्टिफाइंग एंट्री पास होगी इसकी क्या होगी, सप्लायर डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। और ये जो सेल्स रिटर्न गलती से डेबिट हुआ है इसे क्या कर देंगे, इसको भी हम क्रेडिट कर देंगे, तो ये हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट। अमाउंट इसका अमाउंट दोनों फिल हो जाएगा, यहाँ पर 1000 और यहाँ आ जाएगा 2000। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। गुड्स सोल्ड टू मनोज 900 entered through sales return book. So what is the correct entry when goods sold to Manoj? Manoj account debit to sales account, और इसको एंटर किया गया है सेल्स रिटर्न बुक के थ्रू, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनोज। नाउ लेट्स फास्ट रेक्टिफाइंग एंट्री। मनोज जो डेबिट होना है उसको डेबिट कर दिया, सेल्स जो क्रेडिट होना है उसे क्रेडिट कर दिया, और सेल्स रिटर्न जो गलती से डेबिट हुआ है उसे क्या कर दिया, उसे भी क्रेडिट कर दिया है। और अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 900 और 1800 आ जाएगा डेबिट में, राइट। So let's have more example of this kind of errors. We are received from Punit. So what is the entry? Bills receivable receive account debit to Punit, और इसको एंटर किया गया बिल्स पेबल बुक के थ्रू। बिल्स पेबल बुक एक क्रेडिट लाइबिलिटी है और इसे किया गया है एंटर लाइक दिस, पुनीत अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल बुक। अब इसे रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास जाएगी, वी आर डेबिट होना है उसे डेबिट कर लेते हैं, जो गलती से क्रेडिट है उसे भी डेबिट कर लेते हैं, और पुनीत को क्रेडिट होना है तो उसको हमने क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री पास हो जाएगी बी आर अकाउंट डेबिट बीपी अकाउंट डेबिट टू पुनीत अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 2000 और इसका क्रेडिट में टोटल आ जाएगा 4000। नाउ लेट्स हैव नेक्स्ट एंट्री। गुड्स परचेज फ्रॉम कमल एंटर थ्रू परचेज रिटर्न बुक। सो व्हाट इज द करेक्ट एंट्री, गुड्स परचेज फ्रॉम कमल, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कमल्स अकाउंट। सो कितना अमाउंट है 700, और इसको एंटर किया गया परचेज रिटर्न बुक के थ्रू, तो परचेज रिटर्न होती है नेचुरली क्रेडिट, सो इसको रिकॉर्ड किया गया है कुछ तरह से, कमल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 700 और 700। अब इसको आपने ये परचेज डेबिट होना है, इसे डेबिट कर देते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट विथ 700। परचेज रिटर्न जो गलती से क्रेडिट हुआ है उसे भी डेबिट कर लेते हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट विथ 700। और कमल को होना है क्रेडिट, तो कमल को कर लेते हैं हम कमल अकाउंट क्रेडिट विथ 1400।
Now you can see all these errors are very much similar errors. So you can see the video again and again and you can understand. Now some more type of error of two-sided. Here the overcasting and undercasting of accounts. So now you try to understand this. Goods sold to Kapil 10,000 recorded as 1,000. So first of all, let me write the correct entry. Goods sold to Kapil. What is the correct entry? Kapil's account debit to sales account. So अमाउंट कितना है ये 10,000 और इसकी रिकॉर्डिंग हुई है जो इसकी रॉन्ग एंट्री हुई है कपिल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट हुई है 1,000। अब देखो इसमें 10,000 की एंट्री है और एंट्री हुई है 1,000 की, तो हम इसमें करेक्शन कैसे करेंगे इसको? रेक्टिफाइंग एंट्री, इसी एंट्री को दोबारा एज इट इज पास कर देंगे और जो बाकी बचा हुआ अमाउंट है उससे एंट्री पास हो जाएगी, यानी कपिल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और क्योंकि 10,000 की एंट्री है 1,000 रिकॉर्ड कर लिया गया तो हम 9,000 से इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स हैव नेक्स्ट एंट्री। गुड्स सोल्ड टू कपिल 10,000 रिकॉर्डेड एज 11,000। इस वाले केस में क्या फर्क है? यहाँ पे कम रिकॉर्ड हुआ है और यहाँ ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है। नाउ यू सी दिस, व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? कपिल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 और इसकी रिकॉर्डिंग हुई है कपिल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट दैट इज 11,000। अब देखो यहाँ पे ओवरकास्ट हो रही है ये, यानी अमाउंट ज्यादा हो रही है, तो ऐसे केस में जब रिकॉर्डिंग ज्यादा हो जाए, ओवरकास्ट हो जाए, तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो इसको हम पास कर देंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू कपिल्स अकाउंट। तो ये कितने से हो जाएगी रिवर्स? कितने की 10,000 की रिकॉर्डिंग थी, 11,000 से ओवरकास्ट है, तो 1,000 से ओवरकास्ट हो रही है तो हम इसको 1,000 से इसको एंट्री को पास कर देंगे। Right, now we have some more example of this kind of entry. You can understand purchase furniture for cash recorded as 700. Now you can say this is a simple case of undercasting. Yani first of all we'll have to pass correct entry. What is the correct entry? Correct entry will be furniture debit, furniture account debit to cash count. करेक्ट अमाउंट जो होनी पास होनी है वो होनी है 7,000 से 7,000 और जो हमने रॉन्ग एंट्री पास करी है वो पास करी है 700 से, यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश काउंट, this amount is passed with 700. So you can see this amount is undercast. So undercast हुआ है तो entry will remain same with the difference amount. So what is the correct rectifying entry? Furniture account debit to cash count और यहाँ amount कितना जाएगा 6,300. Now look at the next, machinery purchased for ₹5,000 recorded as 50,000. 5,000 की एंट्री या रिकॉर्ड किया गया 50,000 से ओवरकास्ट का केस है, तो उस केस में एंट्री क्या होती है? जो करेक्ट एंट्री है उस एंट्री को रिवर्स कर देंगे। तो पहले करेक्ट एंट्री पास करते हैं। तो करेक्ट एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश काउंट, 5,000 की एंट्री है और इसको रिकॉर्ड किया गया है मशीनरी अकाउंट कैश काउंट 50,000। तो आप देख सकते हैं ये ओवरकास्ट हो रहा है, तो मैंने क्या बताया, जैसे ही ओवरकास्ट होगा तो ये इसको हम क्या कर देंगे, इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे। तो व्हाट इज रेक्टिफाइंग एंट्री? कैश काउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट और अमाउंट क्या आएगा इसमें? इन दोनों का डिफरेंस अमाउंट है, यानी 5,000 की रिकॉर्डिंग होनी है, उसको 50,000 रिकॉर्ड किया गया है, तो 45,000 से इसको हम रिवर्स कर देंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? जब अंडरकास्ट होती है दोनों बुक्स तो हम एंट्री को सेम रख के डिफरेंस अमाउंट को पोस्ट करेंगे, और अगर ये ओवरकास्ट हो जाए तो इसका हम क्या कर देंगे, डिफरेंस अमाउंट से एंट्री को रिवर्स पास कर देंगे। नाउ लेट्स हैव सम अनदर टाइप ऑफ एंट्री। अ क्रेडिट सेल्स ऑफ 6,000 हो जाए ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स अकाउंट। मतलब ये एक सेल की है जेको जिसको रिकॉर्ड ही नहीं किया गया है, तो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, सीधे इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर लेते हैं। तो व्हाट इज द रेक्टिफाइंग एंट्री?
अजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसको सीधा रिकॉर्ड कर लेते हैं और ये अमाउंट कितना आ जाएगा 6000 और 6000. नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न ₹800 टू कस्टमर एंड वर टेकन इनटू द अकाउंट बट नो एंट्री हैज बीन पास्ड. यानी हमने किसी कस्टमर ने हमें गुड्स रिटर्न कर दिया है, उसको हमने एक स्टॉक में ऐड भी कर लिया है और उसकी एंट्री पास नहीं है. तो कस्टमर हमें जो गुड्स रिटर्न करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न. तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू customers account. So this entry is not recorded, so we have record now, right? Now look at this. Once credit sale of old furniture of 1500 to Ram recorded as 5100. So sale of old furniture to Ram, सबसे पहले correct entry क्या पास होगी, correct entry पास होगी Ram to Ram's account debit to sales account. What is the correct entry? 1500 की अमाउंट है और इसको रिकॉर्ड किया गया है राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एज 5100. अब आप देख सकते हैं ओवरकास्ट हो रहा है ये. तो ओवरकास्ट केस में मैंने क्या बोला, इसको रिवर्स कर देंगे तो एंट्री पास हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट. इसमें अमाउंट कितना है, दोनों अमाउंट का डिफरेंस अमाउंट आ जाएगा, यानी ये पास हो जाएगी विद 3600. ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री देखिए, मशीनरी परचेज फॉर कैश 6400 रिकॉर्डेड एज 4600. तो व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? फर्स्ट ऑफ ऑल मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अमाउंट कितना आ जाएगा, ये 6400. और इसको हमने किया है मशीनरी परचेज, इसकी जो रॉन्ग एंट्री पास की गई है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सो ये पास किया गया 4600 से. आप देख सकते हैं ये अंडरकास्ट है, यानी 6400 की रिकॉर्डिंग है जिसे 4600 रिकॉर्ड किया गया है. सो एंट्री विल रिमेन से इन केस ऑफ अंडरकास्टिंग. तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और इसमें डिफरेंस अमाउंट आ जाएगा, यानी 64 माइनस 4600. तो ये पास हो जाएगा. ये पास हो जाएगा 1800 से. So these are some examples of two-sided errors. I hope you have understood. So आप वीडियो को देखिए बार बार, और नहीं समझ में आएगा तो आप दोबारा पूछ सकते हैं. और चैनल से बने रहने के लिए आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें. अगले वीडियो में I will bring one-sided errors. So thank you for watching, student.